Hello friends, the 7th Foundation Day of EPFO, Employees Provident Fund Organization, was celebrated with great enthusiasm, and you may have witnessed the event either in person or through the video coverage. The celebrations were grand, but there were certain issues that deserve attention. A long discussion took place during the event, and Mansukh Mandavia, the Senior Minister of the Ministry of Labour, spoke at length. From his speech, it seemed as though he was reading words directly from Prime Minister Narendra Modi's speeches. He talked about how EPFO is providing social security, but there was something missing, something crucial for the people in attendance, especially those from the EPS 95, Employees Pension Scheme of 1995. Mansukh Mandavia, despite discussing various aspects of social security, did not say a single word about the struggles of the EPS 95 pensioners. Those gathered in the audience, especially the pensioners, were hoping to hear some words of assurance, perhaps a mention of their long-standing demands for a pension increase, dearness allowance and medical support. However, despite the large gathering and the talk of Modi's 5 Pran, 5 vows, no attention was paid to the pressing issues of EPS 95 pensioners. For those unfamiliar, the EPS 95 pensioners have been fighting for years, over 8 years, in fact, for basic support like a minimum pension of 7,500 rupees, dearness allowance and medical benefits. Despite their continuous efforts, including memorandums submitted to various ministers, their concerns have been largely ignored. The lack of recognition during this grand event raised questions. Are these pensioners being treated like stepchildren? Is this deliberate neglect? While the event was a spectacle with speeches about the EPFO's growth and its impact on social security, the reality is that these pensioners, who contributed to the system, are still waiting for the basic promises to be fulfilled. Their situation remains dire, and there is little acknowledgement of their ongoing struggles. Why was this important issue left unaddressed? Why is it that, despite having over 15,000 EPFO officials across the country, no one is listening to their concerns? It's clear that the system is failing them. Despite the grand speeches, the truth is that pensioners are dying every day. Approximately 200 EPS 95 pensioners pass away daily due to a lack of adequate healthcare and financial support. Many are living in extreme poverty, unable to access basic medical treatment, and yet their voices remain unheard. At this Foundation Day event, while the focus was on how EPFO is serving the broader population, there was no mention of the EPS 95 pensioners' plight. Instead, the speeches highlighted the future of the Provident Fund and how it is meant to secure the future of workers. But for these pensioners, that future never materialized. Their contributions were meant to safeguard their old age, but the government has failed to deliver on these promises. Mansukh Mandavia's silence on this issue was particularly striking. If you are going to speak about the Prime Minister's 5 Pran and the government's efforts for social security, why not mention the pensioners who are still waiting for the benefits they were promised? It is a glaring oversight and raises serious questions about the government's intentions. The pensioners of EPS 95 have been patiently waiting for years, organizing protests, meeting ministers, and submitting requests. But their struggles remain unresolved. This issue isn't just about the pensions, it's about respect and fairness. These pensioners have worked hard, saved for their future, and contributed to the nation. Yet, they are left to fend for themselves in their old age, with no financial support or healthcare assistance. The lack of action on the part of the government is not just a failure to address a bureaucratic issue. It is a moral failure. How can you justify this neglect when the money for these pensions is already in the system? The funds belong to the workers, and yet they are being denied the benefits they are rightfully owed. Friends, the anger and frustration of the EPS 95 pensioners are growing.
This issue will not be ignored forever. The time has come for action. The government must stop the hollow speeches and start addressing the real needs of these pensioners. It's not just about promises, it's about delivering what has been long overdue. As we approach the winter session of Parliament, I urge all EPA's 95 pensioners and their supporters to unite. Organize meetings, raise your voices, and make sure your concerns are heard. Don't let your struggles be swept under the rug. It's time to demand the respect and support you deserve. The question is, will the government respond, or will it continue to ignore the voices of those who helped build this nation? We need to know, and we need to see real action. It's time for the government to step up and fulfill its promises, particularly to the pensioners of EPA's 95. Thank you, and let's hope that we can turn the tide for EPA's 95 pensioners once and for all. If you haven't already, we encourage you to watch the full speech of Minister Mansukh Mandavia at the EPFO's 72th Foundation Day. It offers valuable insights into the workings of EPFO and the government's approach to social security. However, as you watch, keep in mind the critical issues raised here for EPA's 95 pensioners, who are still waiting for their rightful benefits. कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अपने भी विमुख पराये बनकर आंखों के सन्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। और जीवन के इस कर्तव्य पथ पर बिना रुके बिना भटके आगे बढ़ने के लिए हमें जिस कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन की अपेक्षा रहती है, वो निरंतर हमें प्राप्त हो रहा है। फिटनेस प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, ग्रीन एमपी माननीय मंत्री श्रम एवं रोजगार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से 150 किलोमीटर तक लंबी पदयात्रा करने वाले, माय भारत पोर्टल का आह्वान करने वाले सर, आपका स्वागत है यहाँ, प्लीज आइए। ईपीएफओ के 72वां स्थापना दिन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारी सेक्रेटरी सुमिता जी, रमेश कृष्णमूर्ति जी, अशोक जी, वर्चुअली और प्रत्यक्ष जुड़े हुए सभी ईपीएफओ के ऑफिसर, कर्मचारीगण, सभी भाइयों एवं बहनों, ईपीएफओ को स्थापना से 72 ईयर्स पूर्ण हुए हैं। एक लंबी यात्रा इस इंस्टीट्यूट की, इस संस्था की रही और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोअर मिडिल क्लास जिसकी सैलरी 15,000 नियरेस्ट होती है या कम होती है, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में सोशल सिक्योरिटी मिले, अपनी बचत करे, जब आवश्यकता हो तब अपने परिवार में किसी के बच्चों को पढ़ाना हो, परिवार में शादी हो, या तो अनिवार्य आवश्यकता के समय पे अपनी बचत को उपयोग कर सके और उसमें से कई हिस्सा वो पेंशन फंड में भी डाले, ताकि उनके पिछले लाइफ में पेंशन के रूप में उसका सहारा बने। और उसको मैनेज करने का काम, दायित्व ये ईपीएफओ निभा रहे हैं।
यहाँ कई लोगों को सम्मानित करा गया, जिन्होंने स्वच्छता में अच्छा काम करा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा खेला हो, जिन्होंने अच्छी सर्विस प्रोवाइड की हो। ऐसे कई कैटेगरी के यहाँ पुरस्कार दिए गए। जिसको पुरस्कार मिला है, ये सभी को मैं अभिनंदन देता हूँ। और ये 17 लोग जो आज पुरस्कार के अधिकारी बने हैं, उसके साथ मैं सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ 1-2 घंटे का सेशन करवाइए। मैं इसलिए कहता हूँ कि जिसको पुरस्कार मिला है, या तो पुरस्कार हम तब देते हैं, आप 15,000 से अधिक एम्प्लॉइज ईपीएफओ में है, उसमें से 17 लोगों को पुरस्कारित करा गया। 17 अवार्ड से शायद 25-30 लोगों को पुरस्कारित करा गया। उन्होंने कुछ विशेष करा है, उत्साह से करा है, और मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि सफल व्यक्ति से कुछ सीखना चाहिए। मैं स्वयं भी सीखना चाहूँगा और मेरे ईपीएफओ को और स्ट्रेंथन करने के लिए उससे मार्गदर्शन भी लूँगा, उसकी एडवाइस भी लूँगा। इसलिए आवश्यक होता है जो व्यक्ति सफल होते हैं जीवन में, कुछ करते हैं, वो सफल होते हैं। भाषण देना बहुत आसान होता है। हम गाड़ी में बैठते हैं और हमारा सहायक हमें एक चिट्ठी दे देता है, रास्ते में हम पढ़ लेते हैं और आधे घंटे भाषण दे देते हैं। वो बहुत बड़ी बात नहीं है। और अच्छा सब लोग भाषण देते हैं तो अच्छा ही देते होंगे, और ये तो सदियों से काम चलता आ रहा है। लेकिन भाषण से जो जितना हम सीखते हैं, उससे ज़्यादा सफल व्यक्ति से हम सीखते हैं। इसलिए सफल व्यक्ति से प्रेरित होना बहुत आवश्यक है। मैं मेरे सभी ईपीएफओ के साथियों को रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे जिस अच्छी ऑफिस चलती है उसके लिए किसी को सम्मानित करा गया। आप कॉल करके पूछिए, भाई क्या आप कैसे मैनेज करते हो। सबसे ज़्यादा ग्रीवेंस रिड्रेसल करा और ग्रीवेंस को खत्म करा, उसको सम्मानित करा गया। आज मेरा आग्रह है कि ग्रीवेंस ईपीएफओ का एक इश्यू है, वो क्या करता है हमें सीखना चाहिए, ताकि उसको पुरस्कारित करा गया और हम हमारी सभी ऑफिस में उनकी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें, उससे सीखें। जिसमें सीखने की इच्छा शक्ति होती है वो व्यक्ति स्वयं अपने लाइफ में भी सफल होता है और सार्वजनिक जीवन में भी सफल होता है। और इसलिए हम हमेशा स्टूडेंट बन के रहे। और दोस्तों, आपको अवसर मिला है, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का अवसर मिला है। यहाँ स्लोगन दिया गया था, हम है ना। हम है तो किसके लिए है? हम जब किसी को कहते हैं कि हम है ना, हम आपके साथ खड़े हैं, उसका प्रतीक के रूप में हमने स्लोगन दिया। इस स्लोगन को चरितार्थ करने में हम कहाँ पर है, हमें स्वयं को उसका एनालिसिस करना चाहिए। और दोस्तों, जब आप सुबह में काम पे जाते हैं तब हमें ये स्लोगन को स्मरण करके जाना चाहिए, और जब सोते हैं तब रात को सोने जाने के पहले हमें उसका फिर से स्मरण करना चाहिए कि आज हमने किसी को मदद करी क्या हमने फॉर्मेलिटी करी है। आपके पास कोई आता है, नीडी व्यक्ति है, आपके पास कोई आता है, काम लेके आता है, छोटा व्यक्ति है, आपको वहाँ नहीं जाना है, वो आपके पास आता है। जब आपके पास आता है तो आप उसको 2 बात बोल सकते हैं कि भाई आप जरा खड़ा रहिए, मैं करेक्शन करके देखता हूँ। आपने करेक्शन करा और उसमें कुछ गलती हो, वो कुछ फॉर्म भर के आए हो, आप कहेंगे कि मैं देख लेता हूँ। देखने के बाद आप कहें जरा इतनी चीज़ें चेंज करके लाओ और उसमें ये चेंज करना है।
दोस्तों केवल इतना कहेंगे ना, ये नहीं होगा कल आना, तो छोटा आदमी कब काल आएगा? क्या हम उसके इश्यू को इमीडिएट एड्रेस करते हैं क्या? दोस्तों मुझे लगता है इस मिनिस्ट्री में मुझे 5 महीने हुए हैं, उसके पहले मैं 5 मिनिस्ट्री कर चुका। एक बार कोई इंस्टीट्यूट के काम करने वाले टीम की इच्छा शक्ति बन जाती है कि हम हैं ना, हम सहयोग करने के लिए तैयार है, हम आपके लिए है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है, मुझे करना चाहिए। ये भाव संस्था के सभी कर्मी और सभी अधिकारी के मन में आना चाहिए। दोस्तों सफलता उसके पर होती है, और मोदी जी ने हमें कहा है कि 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है। जब विकसित भारत बनाने की बात मोदी जी ने कही, तब केवल नारा नहीं दिया, लेकिन 2022 15 अगस्त को रेड फोर्ट से उद्बोधन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें विकसित भारत के लिए 5 प्रण लेना होगा। और दोस्तों एक व्यक्ति से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। 140 करोड़ की जनसंख्या का हमारा देश एक संकल्प से आगे बढ़े, और इसलिए मोदी जी ने कहा कि हम देश के 140 करोड़ की जनता, हम 5 प्रण लेते हैं। 5 प्रण के आधार पर हम हमारे देश को विकसित बनाएंगे। पहले कहा कि विकसित भारत हमारा संकल्प है। दूसरा प्रण लिलवाते हुए कहा कि हम गुलामी की मानसिकता को छोड़ देंगे। ये देश हजारों साल तक परतंत्र रहे हैं। कभी हमारे पर हुणों ने शासन करा, कभी हमारे पर शकों ने शासन करा, 1000 साल तक हमारे पर आक्रांताओं ने शासन करा, 240 साल तक अंग्रेजों ने हमारे पर शासन करा। इतनी गुलामी के बाद 1947 में हम आज़ाद हुए हैं। ये देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए देश कायम आज़ाद रहे, नई सोच नए विचार से हमारा ट्रेडिशनल, हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और तब मोदी जी ने कहा कि हम गुलामी की सभी चिन्हों को छोड़ देंगे। तीसरा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि ये देश के पास अपार विरासत है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा कहाँ से लेंगे? आज भी हम कहते हैं कि एक्स व्यक्ति है, वाई व्यक्ति है, उसके पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, आज उसके 3rd जनरेशन 4th जनरेशन गौरव महसूस करते हैं कि मेरे फोरफादर फ्रीडम फाइटर थे। मैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता। मेरी विरासत कौन है? विरासत हमें प्रेरणा देती है, विरासत हमें दिशा देता है। मोदी जी ने कहा कि हम हमारी विरासत से प्रेरणा लेके आगे बढ़ेंगे। चौथा प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि हम एक सोच से, एक संकल्प से आगे बढ़ेंगे। 140 करोड़ की जनता एक संकल्प करेगी, एक विचार से, तालमेल से आगे बढ़ेगी, तो देश एक साथ में 140 करोड़ स्टेप आगे बढ़ सकता है। जब एक व्यक्ति सोचता है, आगे बढ़ता है, तो एक स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 140 करोड़ की जनसंख्या एक संकल्प के साथ आगे बढ़ती है, तो हम देश एक साथ में 140 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। और इसलिए नेशन, देश के लिए हम संकल्पबद्ध हो। और 5वां प्रण लिलवाते हुए मोदी जी ने कहा कि नेशन के प्रति, सोसाइटी के प्रति हम हमारा कर्तव्य का निर्वहन करें। जब हम नेशन से अपेक्षा रखते हैं, किसी से भी अपेक्षा रखते हैं, तब हमारा कर्तव्य उसके प्रति भी होता है। 140 करोड़ की जनता नेशन के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन जब चालू कर देगी, तब दोस्तों कमिटमेंट जुड़ जाएगा। और जब कमिटमेंट जुड़ जाता है तो व्यक्ति डेडिकेटेड हो जाता है, और व्यक्ति कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम पे लग जाते हैं, तो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान ऑटोमेटिक मिल जाता है। दोस्तों हमारे ईपीएफओ के सभी साथियों से मेरी अपेक्षा है, आज सोशल मीडिया में क्या हमारे लिए कमेंट आती है हम देखें, न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ आती है हम देखें, ना केवल पढ़े लेकिन उसके सॉल्यूशन पर हम विचार करें।
15,000 से अधिक जनसंख्या में हमारा परिवार है, उसमें से कई एक्सपर्ट लोग होंगे। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप यही जॉब में आ गए हैं तो दूसरा, कई लोग आईटी में एक्सपर्ट होंगे, कई लोग इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक में एक्सपर्ट होंगे, कई लोग अलग अलग विषय से अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अलग अलग होगा, रुचि का विषय भी अलग अलग होगा। क्या हम सब लोग अपनी अपनी रुचि के लोगों को ढूंढ के हमारे ईपीएफओ में जो इश्यू है उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या हम सोचते हैं कि हमें वोट देनी चाहिए? दोस्तों, ट्रेडिशनल तरीके से चलने से हम लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। समय के साथ बदलाव आवश्यक होता है और वही समय के साथ टिक सकता है। हमें टिकना है और देश की सेवा करनी है, इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें हमारा कर्तव्य का निर्वहन करना है। एक बार जो आपको आपका कर्तव्य का निर्वहन करने की सोच बन जाएगी तो मैंने सेकंड में जो बात कही ऑटोमेटिक आपके मन में आने लगेगी। ये इश्यू है, हम एड्रेस करेंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। ये केवल सीपीएफसी की ही जिम्मेवारी नहीं है, सेक्रेटरी की ही जिम्मेवारी नहीं है। मंत्री जी आके हर वीक में 2 बार हमारे सामने बैठ जाता है, ये क्या केवल मनसुख मांडविया की एक की जिम्मेवारी है? जी नहीं। हमें केवल टकोर करे, सोसाइटी टकोर करे, कोई न्यूज से कोई चीज़ निकल के आए, अरे कोई हमारे लाभार्थी हमारे पास आए, 2 सेंटेंस बोले, कभी हमसे गुस्सा करे, उससे हम सीखे, तब जाके हम ईपीएफओ को दुनिया में नंबर 1 कर पाएंगे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हमारी संस्था, हमारी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने। कई टाइप के रिफॉर्म के लिए कई कमेटियां हमने बनाई हैं, ये कमेटियां काम कर रही है। हमें पेंशन कवरेज को और बढ़ाना है, हमें आईटी प्लेटफॉर्म को रोबस्ट करना है, हमें ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए बेस्ट सिस्टम बनाना है, हमें लाभार्थी यानी कि हमारे जो पार्टनर है उसके सेंट्रिक बिहेवियर और सिस्टम खड़ी करना है। दोस्तों, उसके लिए हमें सामूहिकता से काम करना होगा, एक दूसरे को सुझाव देना होगा, इनपुट्स देना होगा। कोई भी काम हमें बर्डन नहीं लगना चाहिए। कोई भी लेटर परिपत्र आएगा उससे हमें आहूत नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो काम करता है, मेरा नेचर और स्वभाव है, काम करता है उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। कोई काम करता है, मेहनत से काम करता है, और जब काम करता है, गति से काम करता है, रोड पे भी फास्ट गाड़ी चलती है तो छोटा सा पत्थर भी जर्क देता है। दोस्तों, कोई काम करने की इरादे से कुछ गलती भी हो जाए तो मैं उसको गलती नहीं मानता, लेकिन नहीं करने को हम सेटिस्फैक्शन लेवल ना माने। कई बार हम मान लेते हैं कि हम करेंगे तो कभी फंसेंगे, नहीं करेंगे तो सीआर पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। जी नहीं, ऐसा सीआर हमें नहीं लिखवाना है। हमें कुछ करके हमारा पॉजिटिव सीआर आपार लिखवाना है और उसके लिए हमें संकल्प करना है। हम डेडिकेशन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। जो भी डिसीजन हो उसमें मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, इस टाइप का वर्क कल्चर हमें डेवलप करना है। आज 72 ईयर्स पर हम हैं। जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, विकसित भारत 2047 में रेड फोर्ट से देश के प्रधानमंत्री जब भाषण करेंगे, तब दोस्तों ये हमारा ईपीएफओ का फंड आज 25 लाख करोड़ है, उसे 3-4 टाइम ज़्यादा होगा। यही आपका फंड सोशल सिक्योरिटी भी देगा और नेशन निर्माण में भी कंट्रीब्यूट भी करेगा। ये जज्बा के साथ हमें काम करना चाहिए। और दोस्तों, लास्टली यहाँ हमारे 2 रिटायर्ड ऑफिसर को हमने सम्मानित करा। दोस्तों, आप भी आज काम कर रहे हैं, कल रिटायर्ड करके जाएंगे, लेकिन कोई व्यक्ति जाता है तो पदचिन्ह छोड़ के जाता है। आप कोई जगह पे गुजरेंगे तो आपका पदचिन्ह वहाँ रह जाता है।
आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके जो लाभार्थी है, आप ऑफिसर है, जहां भी है वहां आपकी ट्रांसफर हो या तो आप रिटायर्ड हो और उसके बाद 5 साल 10 साल तक लोग हमें याद करते रहे कि ईपीएफओ में ये ऑफिसर था ना हमारे यहाँ, उन्होंने इतना सहयोग करा था। और दोस्तों, जब आप करके जाते हैं ना, तो जो प्रेजेंट ऑफिसर होते हैं, मैंने ऐसे कई अफसर को देखा है, 10-10 साल रिटायर्ड करने के लिए हो गया हो, ट्रांसफ़र होने से भी हो गया हो, लेकिन वहाँ आके उसका नाम गौरव से बोलते थे, साहब आप हैं, लेकिन वो भी एक ऑफिसर था, वो यहाँ बहुत अच्छा करके गया था। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि मेरे 15,000 से अधिक सब भी मेरे ईपीएफओ के परिवारजन यही पद चिन्ह छोड़ के अपनी कैरियर से आगे बढ़े। आप सबको मेरे ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। If you found this video helpful or informative, please don't forget to like, share, and subscribe to the channel for more updates. Your support means a lot. Also, feel free to drop your thoughts and comments below. We'd love to hear your views on this important issue. Don't forget to press the notification bell icon so you never miss an update from us. Let's continue raising our voices and bringing attention to the struggles of EPA's 95 pensioners. Together, we can make a difference. Thanks for watching this video and see you in the next video. Take care and be strong.